بعض مورخوں نے مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی، دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسیلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے نہار الرجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مسیلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا، اور یہ سب مسیلمہ کے نام پر جانے قربان کرنے والے لوگ تھے۔ مسیلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے، موتہ میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی تھی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی، اس کے مطابق خالد نے اپنا رستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسیلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربا کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی، انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسیلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا تھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا، دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسیلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا، اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس نام شرجیل تھا، کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرجیل بن حسنہ خالد کے لشکر کا سالار تھا۔ مسیلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرجیل تھا۔ شرجیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے تینوں حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا، اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لوگے؟ مسیلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسیلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنانانے لگے۔ خالد اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسیلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے گا۔ نفری کی افراد کے زور پر مسیلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملے کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد مسیلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے
कि उसे कोई चाल चलने का मौका ना दिया जाए। इस वक्त के रिवाज के मुताबिक खालिद को भी जरूरत महसूस हुई कि अपने लश्कर का हौसला बढ़ाएं। खलीफा अल मुस्लिमीन ने खालिद की मदद के लिए जो दस्ते भेजे थे, इनमें कुरान के हाफिज और खुश अलहान कारी भी खासी तादाद में थे। इस दौर के हाफिज कुरान और कारी माहिर तेगजन और लड़ने वाले भी होते थे, वो मस्जिदों में बैठे रहने वाले लोग नहीं थे। इसके अलावा खालिद के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने हर मैदान में अपने से कई गन्ना ताकतवर दुश्मन को शिकस्तें दी थीं। खालिद के लश्कर में उम्र के भाई ज़ैद बिन अल खिताब और उनके बेटे अब्दुल्ला भी थे। इसके अलावा अबू दुजाना भी थे जो जंग अहद में इन तीरों के सामने खड़े हो गए थे जो रसूल करीम पर आ रहे थे। उन्होंने अपने जिस्म को आपकी ढाल बना दिया था। खलीफते अल मुस्लिमीन के बेटे अब्दुर्रहमान भी थे और एक खातून उमारा अपने बेटे के साथ गई थी। उमारा जंग अहद में बाकायदा लड़ी थी। उनके अलावा वहशी नाम का हिस्सा भी खालिद के साथ था, जिसकी फेंकी हुई बर्छी निशाने से बाल बराबर उधर इधर नहीं होती थी। कबूल इस्लाम से पहले जंग अहद में इसी वहशी ने हजरत हमजा को बर्छी फेंक कर शहीद किया था। मुजाहिदीन का लश्कर तादाद में तो कम था, लेकिन जोश, जिहाद और जज्बे के लिहाज से कमतर न था। खालिद ने खुद भी अपने लश्कर का हौसला बढ़ाया और कुरान के हाफिजों और कारियों से कहा कि वो मुजाहिदीन मदीना को आयात कुरानी सुनाकर बताएं कि वो घरों से इतनी दूर किस मकसद के लिए लड़ने आए हैं। कारी अपनी पर असर आवाजों में लश्कर को वो आयात सुनाने लगे जिनमें मुसलमानों के लिए जिहाद फर्ज करार दिया गया है। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। अल्लाह के सवा और कौन था जो उन कलील तादाद मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करता। मौरखीन के मुताबिक मुजाहिदीन के इस लश्कर ने तमाम रात इबादत और दुआओं में गुजार दी। दिसंबर 632 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह तुलू हुई तो खालिद ने मिसयलमा के लश्कर पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। क़ल्ब की क़यादत उन्होंने अपने पास रखी थी। एक तरफ अबू हुज़ैफा और दूसरी तरफ ज़ैद बिन खिताब थे। मुसलमान जिस कहर व गज़ब से हमला आवर हुए और जिस बेजिगरी से लड़े वो देखकर खालिद को उम्मीद बंध गई कि वो मुर्तद्दीन के लश्कर को उखाड़ फेंकेंगे। खुद खालिद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी मिसयलमा का लश्कर जहां था वहीं रहा। बहुत से मुजाहिदीन पहले हिलुई में ही शहीद हो गए। दिन गुजरता जा रहा था, दान जंग का कहर बढ़ता जा रहा था। एक शोर था, चीख व पुकार थी, आह व बका थी, जो जमीन व आसमान को हिला रही थी। मिसयलमा का लश्कर घूम फिर कर लड़ रहा था। इसकी कोशिश ये थी कि मुसलमानों को घेरे में ले ले, और मुसलमानों का अज़्म ये था कि मुर्तद्दीन के इस लश्कर के कदम उखाड़ने हैं और यमामा पर कब्जा करना है। दोनों लश्कर अपनी अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे थे। अगर कामयाब था तो वो मिसयलमा का लश्कर था। मिसयलमा बहुत चालाक और होशियार जंगी कायद था। वो जायजा लेता रहा कि मुसलमान कब थक कर चूर होते हैं। आधा दिन गुजर गया। जमीन खून से लाल होती जा रही थी। जख्मी इंसान भागते दौड़ते घोड़ों तले कुचले जा रहे थे। मुसलमान इस कदर बेजिगरी से लड़ने की वजह से कुछ जल्दी थक गए। मिसयलमा ने भांप लिया। उसने अपने लश्कर के एक ताज़ा दम हिस्से को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। इसके लश्कर का यह हिस्सा तूफानी मौज की तरह आया। मिसयलमा ने सबको यकीन दिला रखा था कि जो उसकी नबूवत की खातिर लड़ता हुआ मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। खालिद ने थोड़ी ही देर बाद महसूस कर लिया कि उसके लश्कर पर दबाव बहुत तेज हो गया है। खालिद कोई चाल सोच ही रहे थे कि मुसलमानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। आगे वाले दस्ते तेजी से पीछे पसपा हुए, पीछे वाले उनसे ज्यादा तेजी से पसपा हुए। सालारों ने बहुत शोर मची लश्कर को पुकारा, नारे लगाए, लेकिन मुर्तद्दीन का दबाव अलिफाउ सूरत इख्तियार कर गया था जिसे मुसलमान बर्दाश्त न कर सके और उनमें बदनज़मी फैल गई। देखा देखी मुसलमान ऐसी बुरी तरह पसपा हुए कि अपनी खैमागाह में भी न रुके और दूर पीछे चले गए। मिसयलमा के लश्कर ने उनका ताक़ुब किया।
अहद के मैदान में भी मुसलमानों ने अपने लिए ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर ली थी और हजीमत उठाई थी। ये इनकी दूसरी पसपाई थी जो भगदड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी। मुसलमा का लश्कर जब मुसलमानों की खैमागाह तक पहुंचा तो उसने वहां लूट मार शुरू कर दी। वहां उन्हें रोकने वाला कोई न था। खालिद और उनके सालार दौड़ दौड़ कर अपने लश्कर को रोकने के लिए चीख चला रहे थे, लेकिन मुसलमान अपनी खैमागाह से खासी दूर जाकर रुके। मुसलमा के कुछ आदमियों को खालिद का खैमा मिल गया। वो इसमें जाती। वहां उन्हें ज्यादा माल और दौलत मिलने की तवक्को थी, लेकिन इसमें उन्हें दो इतने कीमती इंसान मिल गए जिनकी उन्हें तवक्को नहीं थी। एक तो उनका अपना सरदार और सालार मजामिया था जो बोहे में जकड़ा हुआ था, और उसके साथ खालिद की नई बीवी लैला तमीम थी, जिसके हसन के चर्चे उन्होंने सुन रखे थे लेकिन इसे देखा कभी नहीं था। मजामिया को तो उन्होंने पहचान लिया। लैला के मुतालिक उन्हें मजामिया ने बताया कि ये कौन है। बैक वक्त 2-3 आदमी लैला की तरफ लपके वो उसे कत्ल करना अपने साथ ले जाना चाहते थे। ठहर जाओ, इनके कैदी सरदार मजा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। दुश्मन के आदमियों के पीछे जाओ, अभी औरतों के पीछे पड़ने का वक्त नहीं। मैं अब इसका नहीं, ये मेरी कैदी है। उनके सरदार का हुक्म इतना सख्त था कि वो बड़ी तेजी से खैमे से निकल गए। उन्हें इतना भी होश न रहा कि अपने सरदार की बेड़ियां ही तोड़ जाते। तुमने मुझे इन आदमियों से क्यों बचाया है? लैला ने मजामिया से पूछा। क्या तुम मुझे अपना माल गनीमत समझते हो? अगर तुम्हारी नियत यही है तो क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकती हूं? तुमने मेरे साथ जो अच्छा सलूक कैद के दौरान किया है, मैं उसके सिले में अपनी जान दे सकता हूं। मजामिया ने कहा, खुदा की कसम, मेरी बेड़ियां टूटकर तुम्हारे पांव में पड़ जाएं तो भी मैं तुम्हें माल गनीमत अलौंडी नहीं समझूंगा। तुमने मुझे कैदी नहीं मेहमान बना कर रखा है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। लैला ने कहा, यह मुसलमानों की रवायत है कि दुश्मन उनके घर चला जाए तो वो इसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझते हैं। अगर तुम मेरे घर में होते तो मैं तुम्हें और ज्यादा आराम पहुंचा सकती थी। लैला, मजा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुझे अभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा खावंद शिकस्त खाकर भाग गया है और तुम मेरे कब्जे में हो? फतह और शिकस्त का फैसला खुदा करेगा। लैला ने जवाब दिया, मेरा खावंद इससे ज्यादा सख्त चोटें बर्दाश्त कर सकता है। कम फहम खातून। मजामिया ने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा, क्या तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि खुदा मुसलमा के साथ है जो उसका सच्चा नबी है? मोहम्मद की रिसालत सच्ची होती मजामिया। लैला ने गरज कर उसकी बात वहीं खत्म कर दी और बोली, मगर तूने मोहम्मद की रिसालत के खिलाफ कोई बात की तो मुझे पर तेरा कत्ल फर्ज हो जाएगा। मैं देख रही हूं कि मेरा लश्कर मुझे इस खैमागाह में अकेला छोड़कर भाग गया है, जहां मेरे दीन के दुश्मन लूट मार कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिल पर जरा सा भी खौफ नहीं। खौफ इसलिए नहीं कि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मजामिया खामोश रहा और वो कुछ देर नजरे लैला के चेहरे पर गाड़े रहा। बाहर फाते लश्कर का फातिहाना गुल गुपाड़ा था। वो मुसलमानों के खैमों को फाड़ फाड़ कर उनके टुकड़े बखेर रहे थे। मजामिया और लैला को तवक्को थी कि अभी मुसलमा के आदमी आएंगे और दोनों को साथ ले जाएं से, लेकिन अचानक गुल गुपाड़ा खत्म हो गया और लूट मार करने वाले लोग भागते दौड़ते खैमागाह से निकल गए। इसकी वजह ये थी कि मुसलमा की तरफ से हुक्म आया था कि फौरन वापस मान अकरबा में पहुंचो, क्योंकि मुसलमान ने देख लिया था कि मुसलमान बड़ी तेजी से इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म हो रहे थे। मुसलमा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो मुसलमानों की शुजाअत और उनके जज्बे से मरूब था। मजा अलैहिस्सलाम और लैला खैमे में अकेले रह गए। मजामिया के चेहरे पे जो रौनक आई थी वो फिर बुझ गई। खालिद इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। ज़ाय करने के लिए उनके पास एक लम्हा भी नहीं था। उन्होंने अपने सालारों और कमांदारों को इकट्ठा किया और उन्हें इस पसपाई पर शर्म दिलाई। इतने में एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और सालारों वगैरह के इज्तिमा में आ रुका। वो उम्र के भाई ज़ैद बन खिताब थे, खुदा की क़स्म इब्न वलीद।
ज़ैद बिन खिताब ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जोखल आवाज में कहा, मैंने मुस्लिमा का दायां हाथ काट दिया है। मैंने निहार उल रिजाल को अपने हाथों कत्ल किया है। ये अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी। निहार उल रिजाल का हलाक हो जाना मस्लिमा के लिए कोई मामूली नुकसान नहीं था। बताया जा चुका है कि वो मुसलमा का मोतमिद खास वाहिद मुशीर और सही मानों में दस्त रास्त था। खालिद और उनके सालारों ने यह खबर सुनी तो उनके चेहरों पर ताज़ा हौसलों की सुर्खी आ गई। क्या तुम जानते हो कि हमें किस जुर्म की सजा मिली है? खालिद ने फिसल आवाज में कहा, मुझे बताया गया है कि हमारे लश्कर में दिल फट गए थे। लड़ाई से पहले ही हमारे लश्कर के मुहाजिर कहने लगे थे कि बहादुरी में अंसार और बूढ़ों उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंसार कहते थे कि मुसलमानों में उन जैसा बहादुर कोई नहीं, और बद्दुओं ने कहा कि मक्का और मदीना के लोग तो ये भी नहीं जानते कि जंग होती क्या है। तुम जानते हो कि हम में मक्का के मुहाजिर भी हैं, मदीना के अंसार भी हैं और अर्द गिर्द के इलाकों से आए हुए बद्दू भी हमारे साथ हैं। इन लोगों ने एक दूसरे पर तानाजनी शुरू कर दी थी। उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, एक सालार ने कहा। मेरे पास इसका इलाज है, खालिद ने कहा। हमने लश्कर में इन सब को इकट्ठा रखा हुआ है। मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर तुम सब जाओ और मुहाजिरीन को अलग, अंसार को अलग और बद्दुओं को अलग कर लो। थोड़े से वक्त में खालिद के हुक्म की तामील हो गई। लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक हिस्सा मुहाजिरों का, दूसरा अंसार का और तीसरा बद्दुओं का था। खालिद घोड़े पर सवार उनके सामने जा खड़े हुए। अल्लाह के सिपाहियों, खालिद ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, हमने मैदान में पीठ दिखाकर दुश्मन के लिए जिनसी और तानाजनी का मौका पैदा कर दिया है। कौन कह सकता है कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन सबसे पहले भाग उठा? मुहाजिरीन, अंसार, बद्दू, अब मैंने तुम्हें इसलिए अलग अलग कर दिया है कि दुश्मन पर फौरन जवाबी हमला करना है। अब देखेंगे कि तुम में से कौन कितना बहादुर है। बहादुरी और बुज़दिली का फैसला तानाजनी से नहीं किया जा सकता। मैदान में कुछ करके दिखाओ, लेकिन इत्तेहाद को हाथ से न जाने देना। रसूल अल्लाह ने तुम्हें जिस बाहमी प्यार का सबक दिया था वो भूल न जाना। तुम में से कोई गिरोह दुश्मन के दबाव को बर्दाश्त न करते हुए पीछे हटे तो दूसरे गिरोह इसकी मदद को पहुंचे। हमें दुश्मन पर साबित करना है कि मुसलमान झूठा नबी है। अगर हम शिकस्त खा गए तो ये झूठी नबूवत हम पर मुसल्लत हो जाएगी और हम मुस्लिमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तद्दीन की लौंडियां बन जाएंगी। खालिद के ये अल्फाज उन तीरों की तरह कारगर साबित हुए जो अपने निशाने से उधर इधर नहीं जाया करते। लश्कर में नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। उधर मुर्तद्दीन मुजाहिदीन की खैमागाह लूट कर और तबाह करके जा चुके थे। इधर से मुसलमान इशारा मिलते ही मुसलमा के लश्कर की तरफ चल पड़े। मुस्लिमा ने अपने लश्कर को फिर हमला रोकने की तरतीब में कर लिया था। जब मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर मुकाबले में पहुंचा तो अंसार से एक सरदार साबित बन कैस घोड़े को अलिफार लगाकर लश्कर के सामने आ गए। ए अहल मदीना, उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, तुम एक शर्मनाक मुजाहिरा कर चुके हो। साबित बिन कैस ने दुश्मन की तरफ इशारा करके कहा, ए मेरे अल्लाह, जिस किसी की ये लोग इबादत करते हैं मैं इस पर लानत भेजता हूं। उन्होंने मुजाहिदीन की तरफ मुंह करके कहा, ए अल्लाह, जो बोरी मिसाल मेरे इस लश्कर ने कायम की है मैं इस पर भी लानत भेजता हूं। इतना कहकर साबित बन कैस ने नियाम से तलवार खींची और घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ के अलिफार लगा दी। उनके आखिरी अल्फाज ये थे, देखो मेरी तलवार दुश्मन को मजा चुकेगी और तुम्हें हिम्मत और इस्तिक़लाल का नमूना दिखाएगी। साबित बिन कैस ने घोड़े को अलिफार लगाई और खालिद ने हमले का हुक्म दे दिया। मुअर्रिख लिखते हैं कि साबित बिन कैस की तलवार ऐसी शिद्दत और ऐसी महारत से चल रही थी कि जो उनके सामने आया वो फिर अपने पांव पर खड़ा नजर न आया। उनके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा रह गया होगा जहां दुश्मन की तलवार बरछी आनी न लगी हो। दुश्मन की सफों के दूर अंदर जाकर साबित बन कैस गिरे और शहीद हो गए।
अपने लश्कर के लिए वो वाकई हिम्मत और इस्तिक़लाल का बेमिसाल नमूना पेश कर गए। मोहम्मद हुसैन हैकल ने बाज़ मौर्रिखों के हवाले देकर लिखा है कि खालिद के लश्कर ने कस्में खा ली थीं कि अब उनकी लाशें ही उठाई जाएंगी, वो जिंदा नहीं निकलेंगे। एक मौर्रिख ने लिखा है कि उन्होंने कसम खाई के हाथ में हथियार ना रहा, तरकश में तीर ना रहा तो वो दांतों से लड़ेंगे। खालिद ने ये मिसाल कायम की कि चंद एक जाबाज चुनकर अपने साथ इस अज़्म से कर लिए कि जहां लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी वहां उन जानबाजों के साथ जा को देंगे। उन्होंने अपने जानबाजों से कहा, तुम सब मेरे पीछे रहना। आगे वो खुद रहना चाहते थे। दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो नई मुसीबत आन पड़ी। आंधी आ गई जिसका रुख मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ था। कुछ मुअर्रिख लिखते हैं कि ये सहराई आंधी नहीं थी बल्कि तेज हुआ थी। दान जंग में घोड़ों और पियादों की उड़ाती हुई गर्द जमीन से उठते बादलों की मानिंद थी। तेज ओतुंद हुआ का रुख मुजाहिदीन की तरफ था, इसलिए मिट्टी और रेत मुसलमानों की आंखों में पड़ती थी। बदर में कुफ्फार के साथ ऐसा ही हुआ था। तेज होती जा रही थी। कुछ मुजाहिदीन ने ज़ैद बन खिताब से पूछा कि ऐसी आंधी में वो क्या करें। खुदा की कसम, ज़ैद बन खिताब ने गरजदार आवाज में कहा, मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे दुश्मन को शिकस्त देने तक जिंदा रखे। ए अहल मक्का ओ मदीना, आंधी से मत डरो, सरों को जरा झुका के रखो। इस तरह रेत और मिट्टी तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ेगी। पीछे ना हट जाना, हिम्मत से काम लो, इस्तिक़लाल को हाथ से ना जाने दो। आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ैद बिन खिताब सालार थे। उन्होंने मुजाहिदीन के लिए ये मिसाल कायम की कि तलवार लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े, उनके दस्ते उनके पीछे गए। ज़ैद बिन खिताब तलवार चिल्लाते हुए दूर तक निकल गए और शहीद हो गए। एक और सालार अबू हुज़ैफा ने भी यही मिसाल कायम की। वो ये नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े, ए अहल कुरान, अपने अमाल से करिन हकीम की नामूस को बचा। वो भी मुकाबले में आने वाले हर मुर्तद को काटते गए, जख्म खाते गए और शहीद हो गए। इन सालारों ने जाने देकर मुजाहिदीन के अज़्म में जान डाल दी और वो आसमानी बिजलियों की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने लगे। इसके बावजूद मुसलमा का लश्कर कायम व दायम था। खालिद ने इमदान जंग का जायजा लिया। ये ऐसी जंग थी कि जिसमें चालें चलने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी।